हेलो स्टूडेंट्स ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਆਰਟੀਕਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਦੀ? let a comma b comma c be sets. R is a relation from A to B and S is a relation from B to C. Then composition of relation is denoted by SOR and is a relation from A to C and is defined as SOR is equal to set of all ordered pair of the form x comma z where x belongs to A and z belongs to C such that this x comma z hold property there is an element y belongs to B for which x comma y belongs to R and y comma z belongs to S. The students की definition है composition of relations दी कि A B C अपने को sets था, R अपने को एक रिलेशन आ A तो B तक और S अनदर रिलेशन आ B टू C तक। तो अपने को जो कंपोजिट रिलेशन बनूगा वो बनूगा SOR। ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਊਗਾ ਸੈਟ A ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਸੈਟ C ਤੱਕ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? SOR ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰਡ ਪੇਅਰ ਹੋਣਗੇ x, z ਟਾਈਪ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ x A ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਊਗਾ ਔਰ z C ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ there is an element y belongs to B such that x, y belongs to R and y, z belongs to S। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੇ x, z ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਰਡਰਡ ਪੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ SOR ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਈਟ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣੀ ਆ ਕਿ there is an element y belongs to B such that x, y belongs to R and y, z belongs to S. Once again I repeat, if we take element m, n belongs to SOR then there is an element L belongs to B such that m, L belongs to R and L, n belongs to S। ਤਾਂ ਇਸ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਥਿਓਰਮਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਥਿਓਰਮ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਆ? if A, B, C are sets, R is a relation from A to B and S is a relation from B to C, then prove that SOR relation the inverse is equal to R inverse of S inverse। ਤਾਂ A B C ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਸੈਟਸ ਹੋਣ, R ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ A to B ਤੱਕ ਔਰ S ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ B ਤੋਂ C ਤੱਕ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ SOR ਪੜਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ? R ਇਨਵਰਸ ਆਫ S ਇਨਵਰਸ। ਤਾਂ ਆ ਦੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਭ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵੀ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਔਰ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ। ਜੇ ਦੋਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੇਮ ਨੇਚਰ ਦੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟ ਇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣਦਾ ਉਹੀ ਸੈਟ ਇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇਖੋ, ਆਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈ A ਤੋਂ B ਤੱਕ, S ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ B ਤੋਂ C ਤੱਕ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ SOR ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਹੂਗਾ? A ਤੋਂ C ਤੱਕ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ। since SOR is a relation from A to C, ਤਾਂ therefore by definition of inverse of a relation SOR inverse is a relation from C to A। ਤਾਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ C to A ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟ ਵਾਲੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। since R is a relation from A to B therefore R inverse is a relation from B to A। since S is a relation from B to C therefore S inverse is a relation from C to B। S inverse relation आ गया अपने को C to B तक और also R inverse relation
अपने को सीगा B to A तक। तो हम तुसीं देखो कि S इनवर्स का है C to B तक रिलेशन और R इनवर्स है अपने को B to A तक। तो बाय कंपोजिट ऑफ रिलेशन के अकॉर्डिंगली आप कह सकते हैं R इनवर्स ऑफ S इनवर्स इज ए रिलेशन फ्रॉम C to A। तो तुसीं ये देखो कि राइट वाला जो रिलेशन है इधर R इनवर्स ऑफ S इनवर्स वो भी अपने को रिलेशन फ्रॉम किया गया C to A। तो हम अपने को प्रूव करते हैं कि जो सैट इस रिलेशन द्वारा बनता जो मैंबर इस है रिलेशन के मैंबर इस तो आप दो सैट्स को इक्वल प्रूव करने SO R इनवर्स सबसैट प्रूव करांगे R इनवर्स ऑफ S इनवर्स का ते बाद दे विच आपां R इनवर्स ऑफ S इनवर्स सबसैट प्रूव करांगे अपने को S ऑफ R इनवर्स का। तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो आप इत्थों शुरू करते हैं लेट Z, X ऑर्डर पेयर जिहड़ा है वो बिलोंग टू अपने को SOR इनवर्स। तो ये समझने वाली गल ये है कि SOR जिहड़ा रिलेशन सी वो A तो C तक बनया सी तां SOR इनवर्स जिहड़ा रिलेशन बनया वो C to A बनया। तो इहदे विच Z मैंबर जिहड़ा है वो C दा और X मैंबर अपने को A दा और इस दे विच जिहड़ा सैट विच कॉमन आ रहा है वो B आ रहा है। तो आपां उस दे बारे भी डिस्कस करते हैं। तो जे Z, X बिलोंग्स टू SOR इनवर्स ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਬਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਵਰਸ ਆਫ ਰਿਲੇਸ਼ਨ X, Z ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ SOR ਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ SOR ਨੂੰ X, Z ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ देयर इज एन एलिमेंट Y बिलोंग्स टू B such that हाँ जी स्टूडेंट्स की आऊगा X, Y बिलोंग्स टू R and Y, Z बिलोंग्स टू S। तो मैं यही लिख लिया therefore there is Y belongs to B such that X, Y belongs to R and Y, Z belongs to S। तो हम अपने को जे X, Y belongs to R तो अपने को डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ द रिलेशन Y, X belongs to B है R इनवर्स एंड Z, Y जिहड़ा ऑर्डर्ड पेयर है वो belongs to B है S इनवर्स। तो और करके जो मैं बाद दे विच लिखिया मैं पहलों लिख लिया Z, Y ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू S इनवर्स एंड जो मैं पहलों लिखिया सी मैं बाद दे विच लिख लिया Y, X बिलोंग्स टू R इनवर्स। तो हम फिर तुसीं देखो Z, Y जे S इनवर्स को बिलोंग कर गया इधर Y, X ऑर्डर पेयर R इनवर्स को कर गया तो बाय डेफिनेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ रिलेशंस आप कह सकते हैं कि Z, X बिलोंग्स टू की आएगा R इनवर्स ऑफ S इनवर्स। R इनवर्स ऑफ S इनवर्स तो Z, जे X R इनवर्स ऑफ S इनवर्स का मैंबर बन गया तो इतों अपने को एक चीज शो होगी कि जे आप Z, X कोई मैंबर SOR इनवर्स का लेता सी तो आप Z, X R इनवर्स ऑफ S इनवर्स का भी शो करता तो अपने को SOR इनवर्स सबसेट ऑफ की बन गया R इनवर्स ऑफ S इनवर्स। तो इसको मैं नंबर 1 देता हूं। मैं इसका मैंबर लैन लगे R इनवर्स ऑफ S इनवर्स का मैं ले लिया लेट L, M जो ऑर्डर पेयर आ वो अपने को बिलोंग्स टू R इनवर्स ऑफ S इनवर्स। क्या तो आप प्रूव करांगे जे भी जे S ऑफ R इनवर्स S ऑफ R दा इनवर्स दे विच भी आ गया तो आ इसका सबसेट है। तो हम तुसीं देखो जे L, M R इनवर्स ऑफ S इनवर्स का मैंबर आप मान लिया तो तुसी डेफिनेशन के बेस पे देखो कि अपने को देयर इज N बिलोंग्स टू B है N बिलोंग्स टू की है जो B सच दैट L, N बिलोंग्स टू S इनवर्स एंड N, M बिलोंग्स टू R इनवर्स। तो बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ रिलेशन की है N, L बिलोंग्स टू S एंड M, N बिलोंग्स टू R। इन्हों मैं फिर दैट इज करके जो मैं बाद दे विच लिखा सी मैं पहलों लिखता और पहले वाला जो है वो बाद दे विच लिखता दैट इज M, N बिलोंग्स टू R एंड N, L बिलोंग्स टू S। तो हम फिर अपने को डेफिनेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ रिलेशंस लिखो जे M, N R का एलिमेंट बन गया और N, L S का एलिमेंट बन गया तो M, L SOR का एलिमेंट बन जाएगा। तो M, L ऑर्डर फिर किसका एलिमेंट बन जाऊगा SOR। फिर डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ रिलेशन L, M बिलोंग्स टू की आएगा SOR जिहड़ा है रिलेशन का इनवर्स हो जाएगा दे विच आ जाएगा। तो हम L, M जे R इनवर्स ऑफ S इनवर्स का मैंबर लेता सी तो आप शो करता L, M SOR रिलेशन दे इनवर्स का भी मैंबर। तो अपने को ये शो हो गया भी R इनवर्स ऑफ S इनवर्स सबसेट की आ गया SOR दा इनवर्स।
ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨੰਬਰ 2 कहता। ਹੁਣ फस्ट ਤੇ ਸੈਕੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ SOR ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਆ ਉਹ ਤੇ ਨਾਲ R ਇਨਵਰਸ ਆਫ S ਇਨਵਰਸ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਬਸੈਟ ਬਣ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੈਂਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਰੋਮ 1 into SOR ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇਨਵਰਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗਾ R ਇਨਵਰਸ ਆਫ S ਇਨਵਰਸ। ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ मैं होप करदा कि यह तुसी जिहड़ा हैगा आर्टिकल ये क्लीयर समझ लग गया होना तुहानूं ते आपां नैक्सट थ्योरम आपां हुण सॉल्व करदे हां जी। नैक्सट थ्योरम नंबर 5, इफ A B C D be sets, R is a relation from A to B, S is a relation from B to C, T is a relation from C to D, then prove that T of S of R is equal to T of SOR। मीन इस थ्योरम दे विच आपां आइसोसिएटिव ला होल्ड करन लगे आ अंडर कंपोजिशन ऑफ रिलेशन। तां की आ A B C D अपने कोले सैट्स आ, R रिलेशन अपने कोले A तो B तक आ, S रिलेशन B तो C तक आ और T रिलेशन अपने कोले C तो D तक आ। तो आप प्रूव कर देंगे T of S of R is equal to T of SOR। तो उस तरह जिवें मैं तुहानूं पहलों भी दस्सिया कि दोनों बराबर करने लई पहलों आपां देखदे हां भी ये रिलेशन कित्थों तो कित्थों तक आ। सब नालों पहलों तुसीं लैफ्ट साइड ते गौर करो, T of S नूं पता करने की कोशिश करो कि ये रिलेशन अपने को किहड़े सैट तो किहड़े सैट तक आ। तो हुण तुसीं देखोगे कि अपने कोले जिहड़ा S रिलेशन आ वो अपने कोले है B तो C तक और T रिलेशन है C तो D तक। तो बाय कंपोजिशन ऑफ रिलेशंस अपने को T ऑफ S इज ए रिलेशन फ्रॉम B तो D होगा। तो जे T ऑफ S अपने कोले B तो D तक रिलेशन बन जूगा तो R अपन रिलेशन गिवन दिता होया इज ए रिलेशन फ्रॉम A टू B। तो फिर बाय कंपोजिशन ऑफ रिलेशंस अपने कोले बन जूगा T ऑफ S ऑफ R is a relation from A to D, A to D। तो लेफ्ट साइड वाला तो आपको पता लग गया भी ये रिलेशन अपने को A सेट A तो सेट D तक आ गया। हुण आपां राइट साइड वाला पता करते हैं। हुण आपां नूं पता R जिहड़ा हैगा रिलेशन वो A तो B तक और S रिलेशन जिहड़ा हैगा वो सेट B तो सेट C तक। तो बाय कंपोजिशन ऑफ रिलेशंस SOR is a relation from अपने को की बन जूगा फ्रॉम A to C। तो जे SOR अपने को रिलेशन A तो C तक बन गया तो नाल अपन गिवन दिता है T इज ए रिलेशन फ्रॉम C to D। तो फिर कंपोजिशन ऑफ रिलेशंस लगाओ तो अपने को आ जाएगा T of S of R, T of S of R is a relation from A to D। तो तुसी ਇਹਨੂੰ देखो कि राइट हैंड साइड वाला भी रिलेशन अपने को सैट A तो सैट D तक आ गया। तो दोनों के दोनों रिलेशन जिहड़े हैगे वो सैट A तो सैट D तक हो गए। हुण आपां दोनों दे जिहड़े कॉरस्पोंडिंग सैट बनणगे ऑर्डर्ड पेयर्स दे वो आपां इक्वल करते हैं। तो आपां दोनों एक दूजे का सबसैट प्रूव करना पैना। तो मैं फिलहाल लैफ्ट साइड दे कोई एलीमेंट को पिक करके शुरू कर देना। लेट X, T बिलोंग्स टू T ऑफ S of R। तो जे आप X, T बिलोंग्स टू T of S of R लेता तो स्टूडेंट्स ये गल का ध्यान रखियो कि T of S of R जिहड़ा रिलेशन सी वो A तो D तक सी। तो X एलीमेंट A दा होगा और T एलीमेंट अपने को किस दा होगा D दा होगा। तो जे X एलीमेंट A दा होया T एलीमेंट D दा होया और इस दे विच जिहड़ा कंपोजिशन ऑफ रिलेशन लग्या वो अपने को जिहड़ा सैट B जिहड़ा आपस में कनेक्ट होके लग गया तो आप कह सकते हैं देयरफॉर देयर इज Y बिलोंग्स टू B such that X, Y belongs to R and Y, T belongs to T of S। एक बार फिर स्टूडेंट्स ध्यान दियो कि अपने को जिहड़ा R रिलेशन सी वो सी A तो B तक और T of S रिलेशन सी B तो D तक। तो जिहड़ा अपने कोले विच कॉमन सैट B आया उससे गल करनी आपां कह रहे कि जे X, T belongs to T of S of R तो therefore there is an element Y belongs to B such that X, Y belongs to R and Y, T belongs to T of S। इसमें मैं नंबर 1 देता।
ਹੁਣ ਜੇ y, t belongs to t of s ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ t of s ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀਗਾ b ਤੋਂ d ਤੱਕ, ਤਾਂ y ਐਲੀਮੈਂਟ b ਦਾ ਹੋਣਾ ਔਰ t ਐਲੀਮੈਂਟ d ਦਾ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ c ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਆ ਕਾਮਨ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ s ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ b ਤੋਂ c ਤੱਕ और t रिलेशन c तो d का, तो डेफिनेटली जे y, t belongs to t of s, so therefore there is an element z belongs to c such that x, y, z belongs to s and z, t belongs to capital T ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨੰਬਰ 2 ਦੇਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ 1 and 2 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ मैं हूँ राइट साइड पे पहुंचना। स्टूडेंट्स इस गल का ध्यान रखियो कि आप SOR में इकट्ठा करना। SOR ताही होंदा जे अपने को इस तरह आ जाए भी A, B belongs to अपने को R and B, C belongs to S, तो आप A, C belongs to S of R कह देंगे। हम तुसी 1 ते 2 नंबर दे विचों इस दे विच पिक करके देखो, इत्थे पिया X, Y belongs to R, इत्थे पिया Y, Z belongs to S, तो ये दोनों कंसैप्ट नाल आपां पहुंच जांगे कंपोजिशन ऑफ रिलेशंस की जी डेफिनेशन बनाई सी x, z belongs to SO of R। ਆਪਾਂ एक from 1 and 2 we have x, y belongs to R इथों पिक कीता and y, z belongs to S वो ਆਪਾਂ इथों पिक कर लिया, ਤਾਂ therefore x, z belongs to ਕੀ ਆ ਗਿਆ S of R। ਹੁਣ ਜੇ x, z belongs to S of R ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ z, t belongs to ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ t ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ because of second ਹੁਣ x, z ਜੇ S of R ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, z, t belongs to relation t ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਬਾਈ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ x, t belongs to t of S of R, t of S of R। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ x, t ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਪੇਅਰ ਆ t of S of R ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿਕ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ x, t ऑर्डर में और t of S of R को पिक किया सी ਆਪਾਂ बिलोंग करवाता है x, t की t of S of R, तो अपने को therefore t of S of R is a subset of t of S of R। तो सिमिलरली ਆਪਾਂ दूसरा ਜਿਹੜਾ वे है t of S of R सबसेट भी की प्रूव कर सकते हैं t of S of R। From these two we get t of S of R is equal to t of S of R, that is we get t of S of R is equal to t of S of R। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਥਿਊਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਨੈਕਸਟ ਥਿਊਰਮ ਨੰਬਰ 6, ਇਹ ਫਸਟ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ लास्ट थ्योरम की let R be a relation from x to y and x1, x2 are subsets of set x, then if x1 is a subset of x2 imply a relation under x1 is a subset of relation under x2। Second part, relation under x1 union x2 equal to relation under x1 union relation under x2। Third part, relation under x1 intersection x2 equal to relation of under x1 intersection relation under x2। The statement student की है इस theorem दी कि जे R एक relation आ from set capital X तो लाके सेट कैपिटल Y तक और x1 ते x2 कैपिटल x1 ते कैपिटल x2 कैपिटल x दे सबसेट्स आ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ प्रूव करांगे फर्स्ट पार्ट जे कैपिटल x1 ਜਿਹੜਾ ਸੈਟ ਆ ਉਹ कैपिटल x2 ਦਾ ਜੇ सबसेट ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ प्रूव कर ਦਾਂਗੇ रिलेशन अंडर x1 is a subset of relation under x2। सेकंड पार्ट प्रूव करांगे रिलेशन अंडर x1 union x2 equal to relation under x1 union relation under x2। एंड थर्ड पार्ट आप प्रूव करांगे रिलेशन अंडर x1 intersection x2 equal to relation under x1 intersection relation under x2। तो स्टूडेंट्स देखो फर्स्ट पार्ट अपन गिवन की दे रखे हैं x1 is a subset of x2 and मैं नंबर 1 टेकन कर लिया
हुण मैं प्रूव करूंगा रिलेशन अंडर x1 इज ए सबसेट ऑफ रिलेशन अंडर x2। तो उस वास्ते लेट कोई भी आपां ऑर्डर्ड पेयर AB बिलोंग्स टू रिलेशन अंडर x1 आपां मान लें। तो तुसीं ये देखो कि इस तो तीन कंक्लूजन अपने को इमीडिएटली माइंड च आउंदे आ कि A रिलेटेड टू B भी हो गया और A जिहड़ा वो x1 का एलीमेंट हो गया और B जिहड़ा है वो y का एलीमेंट होगा, क्योंकि रिलेशन फ्रॉम x2 by c और रिलेशन अंडर x1 जिहड़ा होगा और रिलेशन अंडर x1 टू y होगा। तो A मैंबर डेफिनेटली x1 का होगा और B मैंबर y का होगा और A रिलेटेड टू B होगा। हम अपन नंबर एक फर्स्ट तो पता कि x1 सबसेट की x2 का, तो जे x1 का जिहड़ा मैंबर होगा x2 च भी होगा तो अपन लिख सकते हैं A रिलेटेड टू B कॉमा A जिथे बिलोंग्स टू x1 लिखा सी x1 का हर मैंबर x2 च भी पिया था A बिलोंग्स टू x2 भी लिख सकते हैं कॉमा B बिलोंग्स टू y। तो ये तिने कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली अपने को एक कंक्लूजन राइज हो गया कि A कॉमा B जिहड़ा ऑर्डर्ड पेयर बनता वो बिलोंग्स टू रिलेशन अंडर x2 नु कर गया, क्योंकि A x2 का मैंबर बन गया। तो अपने को रिलेशन अंडर x1 का मैंबर जिहड़ा सी वो रिलेशन अंडर x2 का मैंबर बन गया। तो आप हैंस कह सकते हैं रिलेशन अंडर या रिस्ट्रिक्टेड x1 इज ए सबसेट ऑफ रिलेशन रिस्ट्रिक्टेड x2। सेकंड पार्ट आप प्रूव की करांगे रिलेशन रिस्ट्रिक्टेड x1 यूनियन x2 इक्वल टू रिलेशन रिस्ट्रिक्टेड x1 यूनियन रिलेशन रिस्ट्रिक्टेड सेट x2। तो इस वास्ते आप दो सैट आपस में इक्वल करने होंगे तो एक दूजे के सबसेट प्रूव करने। मैं इस बार एक दूजे के सबसेट नहीं इफ एंड ओनली या डबल इंप्लाई नाल ही कराऊंगा ताकि दोनों साइड्स इको बार च होल्ड हो। तो आप इधरों शुरू करते हैं लेट भी मनना जो आप इफ एंड ओनली इफ ना क्वेश्चन करना तो आप डायरेक्ट करांगे ए बी जिहड़ा है बिलोंग्स टू रिलेशन रिस्ट्रिक्टेड x1 यूनियन x2 का जे मैंबर होगा तो कदों होगा इफ एंड ओनली या डबल इंप्लाई A रिलेटेड टू B आज ओनली। दूसरा कंक्लूजन आज A बिलोंग्स टू x1 यूनियन x2 कॉमा B बिलोंग्स टू y। हम इफ एंड ओनली A रिलेटेड टू B कॉमा सेट थ्योरी जो तुहानू दस्सिया सी x1 यूनियन x2 का मतलब की होंदा A बिलोंग्स टू x1 और A बिलोंग्स टू x2। जे कोई मैंबर यूनियन दे विच होवे तो अपने को या तो फर्स्ट सैट में करूँगा या सैकेंड सैट में करूँगा या दोनों में करूँगा। तो और बच्चा है ना इतने मैं लिखता A बिलोंग्स टू x1 यूनियन x2 के मुताबिक लेता A बिलोंग्स टू x1 और A बिलोंग्स टू x2 कॉमा B बिलोंग्स टू y। तो मैं इसमें आई भी लिख सकता इफ एंड ओनली A रिलेटेड टू B A बिलोंग्स टू x1 B बिलोंग्स टू y और मैं बिट पा लिया A रिलेटेड टू B A बिलोंग्स टू x2 B बिलोंग्स टू y। चढ़ा और ये मैं इस टेन रख ले और तो इस कंसेप्ट को क्लियर करो इफ एंड ओनली डबल इंप्लाई कि A रिलेटेड टू B A बिलोंग्स टू x1 B बिलोंग्स टू y। ਇਹਦਾ मतलब कि A B ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰਡ ਪੇਅਰ ਆ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ R ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਡ ਸੈਟ ਜਿਹੜਾ x1 और A रिलेटेड टू B A बिलोंग्स टू x1 B बिलोंग्स टू y की मतलब आ A B ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰਡ ਪੇਅਰ ਉਹ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ रिलेशन R रिस्ट्रिक्टेड सेट x2 which और आ गया था if and only if आ गया A B belongs to relation R restricted x1 union relation restricted x2। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜੇ A ਮੈਂਬਰ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ A ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ if and only if this ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੂ ਤਾਂ hence अपने को रिलेशन R restricted set x1 union x2 equal to relation R restricted x1 union relation R restricted set x2। थर्ड पार्ट आप प्रूव करना होगी रिलेशन R restricted set x1 intersection x2 equal to relation R restricted x1 intersection relation R restricted set x2। सेम है इतने आप और दी जगह सिर्फ एंड लगाना बाकी सेम प्रूफ है। तो स्टूडेंट्स एक बार अपन फास्टली डन कर लेंगे A B बिलोंग्स टू R restricted set x1 intersection x2 if and only if A related to B A belongs to x1 intersection x2 B belongs to y if and only if A related to B A belongs to x1 and A belongs to x2 B belongs to y। आप ऊपरले पार्ट च और क्या सी क्योंकि यूनियन सी इथे इंटरसेक्शन था ये दोनों जगह विच एंड सेट थ्योरी जो दस्या if and only A related to B A belongs to x1 B belongs to y
ਤਿੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਐਡ ਵਿੱਚ ਆ ਜੂ a ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ b, a ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ x2, b ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ y। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਫ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, a, b ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ r restricted x1 ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, a, b belongs to relation r restricted set x2। ਤਾਂ ab r restricted x1 and ab r restricted x2 ਜਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਜਾਣਾ ਇਫ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ab ordered pair belongs to relation r restricted x1 intersection relation r restricted set x2। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਫ ਐਂਡ ਓਨਲੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਚ ਇਸ ਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਚ ਹੈਂਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ relation r restricted set x1 intersection x2 equal to relation r restricted set x1 intersection relation r restricted set x2। ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਥਿਓਰਮ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਟੈਪ 'ਚ ਡਾਊਟ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਆਲ ਦੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ।